Dear students, myself Dr. Vibhakar. This class we will discuss about nucleus. Nucleus was first of all reported by Robert Brown. Nucleus was first of all reported by Robert Brown in an orchid plant. न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साहब ने रिपोर्ट किया इन एन ऑर्चिड प्लांट, एक ऑर्चिड प्लांट में. न्यूक्लियस इज जनरली ओनली वन इन नंबर. इट इज जनरली वन इन each cell. It is generally one in each cell, only one in number. But in paramecium, it is two in number. But in paramecium it is लिख दें, it is 2 in number. Generally it is only 1 in number, but in paramecium it is 2 in number. Paramecium consists of two nucleus, smaller nucleus and bigger nucleus. Paramecium consists of two nucleus, a smaller nucleus and a bigger nucleus. A smaller nucleus is known as micronucleus. And bigger nucleus is known as meganucleus. Micronucleus and meganucleus. In Opelina, and skeletal muscles, in opalina and skeletal muscles, nucleate is numerous. It is numerous. Numerous means several nucleus are present. Opalina और skeletal muscles में numerous nucleus are present. Numerous nucleus are present और several nucleus are present. Several nucleus. Opalina और skeletal muscle में numerous और several nucleus are present. Several nucleus are present. Opalina is a protozoan. If several nucleus are present in a plant cell, then it is known as coinocytic. Then it is known as cenocytic. Several nucleus, multinucleus. प्लांट सेल में अगर होगा जनरली एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा. दो न्यूक्लियस पाया जाता है पैरामीशियम में. सेवरल न्यूक्लियस पाया जाएगा ओपेलिना स्केलेटल मसल में. अगर मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन प्लांट सेल में पाया जाएगा देन इट इज नोन एज सिनोसिटिक. मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, अगर मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन एनिमल सेल में पाया जाएगा तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सिंसियर. तो ये मैं बता रहा हूँ. रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया ऑर्चिड प्लांट में. जनरली न्यूक्लियस इज ओनली इन वन नंबर इन ईच सेल, बट इन पैरामीशियम इट इज 2 in number. Paramecium consists of 2 nucleus, a smaller nucleus and a bigger nucleus. A smaller nucleus is known as micronucleus and larger nucleus is known as meganucleus. In opalina and skeletal muscles, numerous or several nucleus are present. If the nucleus
और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, सेवरल न्यूक्लियस और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल, देन सच ए सेल इज नॉन एज सिनोसाइट्स, then such a cell is known as sinusoid. And if multinucleate condition is present in an animal cell, then such a condition is known as syncytial. Then such a condition is known as syncytial. Now we will discuss about the position of nucleus. Position of nucleus. Nucleus is generally present in the center. Nucleus is generally present in the center. In the center of an animal cell. Nucleus is present जनरली इन द सेंटर ऑफ एन एनिमल सेल. एनिमल सेल के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस पाया जाता है, बट इट इज प्रेजेंट एक्सेंट्रिक आउट ऑफ सेंटर इन ए प्लांट सेल. Nucleus is generally present in the center of an animal cell. Such a nucleus is known as centric. If in a plant cell, nucleus is present outside the center. प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं पाते हैं. सच ए न्यूक्लियस इज नॉन एज एक्सेंट्रिक. ऐसे न्यूक्लियस को एक्सेंट्रिक बोलते हैं. मैं बताया था सेकंड जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सेकंड पार्ट में कि प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैक्यूल्स. प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, जिसके कारण से पूरा एंटायर सेल इज कवर्ड, नियरली एंटायर सेल इज कवर्ड बाय वैक्यूल, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट समव्हाट आउटसाइड द सेंटर. न्यूक्लियस एकदम सेंटर में नहीं पाएगा, क्योंकि सेंटर में सब कुछ पूरा जगह वैक्यूल घेर लेता है. हैंस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एक्सेंट्रिक. न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक इन नेचर. न्यूक्लियस सेंटर से बाहर पाया जाएगा. Now we have discussed about the discovery of nucleus. It is generally 1 in number. पैरामीशियम में 2, smaller is micronucleus, larger is the macronucleus. Opalina and skeletal muscles consist of several nucleus. Multinucleate condition किस में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है. अगर प्लांट में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाएगा तो इसको सिनोसिटिक बोलेंगे. एनिमल में अगर पाया जाएगा मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो ऐसे न्यूक्लियस को मैं सिंसियल न्यूक्लियस बोलता हूँ. पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, एनिमल सेल के बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंट्रिक होता है, और प्लांट सेल के सेंटर में नहीं पाता है. हैंस द न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक बिकॉज प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैक्यूल्स, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक. ओके, हियर वी हैव मेड वन थिंग. नंबर में 1 पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, सेवरल पाए जाते हैं. सी सर्टेन सेल्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी न्यूक्लियस. फॉर एग्जांपल मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, इसको याद करना है. मैच्योर मेमेलियन आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, एंड साइड ट्यूब है. 3 चीज़ याद करना है. इन तीनों चीज़ों में ऑल दीज 3 टुगेदर, इन तीनों चीज़ों में नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. मैच्योर मेमेलियन आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है तब न्यूक्लियस नहीं पाता. इमैच्योर में न्यूक्लियस यानी पाया जाता है. मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाता है, इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा. प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाता है, साइड ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाता. तीनों को मुझे याद रखना है. मैच्योर मेमेलियन आरबीसी कंसिस्ट ऑफ नो न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स कंसिस्ट ऑफ नो न्यूक्लियस, एंड साइड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जनरली 1 होता है, 2 पैरामीशियम पाया जाएगा, सेवरल पाया जाएगा, ओपेलाइना और
स्केलेटन मसल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में, प्लेटलेट्स में और साइटोम में नहीं पाया जाएगा। सच ए कंडीशन इज नॉन एज, अगर न्यूक्लियस नहीं पाया गया है सेल के अंदर तो ऐसे कंडीशन को मैं बोलता हूँ ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड, सच ए कंडीशन इज नॉन एज ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एब्सेंट। ई न्यूक्लिएटेड। और ई कार्योन, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कार्योन, KARYON, कार्योन। ई न्यूक्लिएटेड और ई कार्योन, ई न्यूक्लिएटेड या इसको ई कार्योन भी मैं बोलता हूँ, ई न्यूक्लिएटेड और ई कार्योन। न्यूक्लियस, फिर से रिवाइज करता हूँ, न्यूक्लियस मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, प्लेटलेट्स और साइटोम में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस ऐसे कंडीशन को मैं बोलता हूँ ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन और ई कार्योनिक कंडीशन। न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कार्योन, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कार्योन। Now we will discuss about the different shapes of nucleus. Different shapes of nucleus. Nucleus is generally circular in shape. Nucleus also known as karyon. Nucleus is generally circular in shape. Generally circular in shape. Generally circular in shape, but it may be oval in shape. For example, in smooth muscles, but it may be oval in shape. For example, smooth muscles. It may be bilobed. In acidophilic cells. एसिडोफिलिक सेल्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ अभी। इट मे बी ट्राइलोब्ड, फॉर एग्जाम्पल बेसोफिल्स, एसिडोफिल में बाइलोब्ड होंगे, बेसोफिल में ट्राइलोब्ड होंगे, and multilobed in neutrophils, several lobes in neutrophils. तो मैंने बात किया जनरल स्ट्रक्चर क्या है, सर्कुलर होगा। जनरल न्यूक्लियस का सर्कुलर होता है। स्मूथ मसल्स में न्यूक्लियस बाइलोब्ड होगा, एसिडोफिल में ट्राइलोब्ड होगा, एसिडोफिल में बाइलोब्ड होगा, बेसोफिल में ट्राइलोब्ड होगा और न्यूट्रोफिल इज मल्टीलोब्ड इन स्ट्रक्चर। तो ये एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ। ब्लड जिनको ना मालूम हो अभी जान जाए। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कॉर्पस सेल्स, simply we call it cells, corpuscles or cells, and the fluid part, that is plasma, fluid part. This is a solid part, that is the corpuscles. Corpuscles or cells are of three types, that is the WBC, RBC and platelets. WBC is of two types. WBC
WBC is of two types, that is granulated. वो WBC जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ऐसे WBC जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाएं उनको ग्रेनुलेटेड बोलते हैं। वो WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स ना पाए जाएं उसको बोलते हैं ग्रेनुलेटेड। फिर से बोलता हूँ, ब्लड दो प्रकार के होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिस्ट करते हैं, कॉर्पसेल्स एंड प्लाज्मा। Corpuscles are of three types, WBC, RBC and platelets. WBC is of two types, that is granulated WBC consists of two types of cells, that is some cells consist of granules and some cells do not consist of granules. The cells consisting of granules are known as granulated and the cells that do not consist of granules are known as agranulated. वो cells जो कि granules consist करती हैं, छोटे छोटे particles consist करती हैं, उनको granulated बोलते हैं। जो छोटे छोटे particle नहीं consist करती उनको बोलते हैं agranulated. Granulated is of three types, that is basophil, acidophil and neutrophils. बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। तो मैं यहाँ पर ये बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल यहाँ आ गया है। दीज आर ए टाइप ऑफ WBC। WBC कैसा है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो एंड इसको मैं याद करने के लिए एक फार्मूला भी आपको बता देता हूँ। बेनजी, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल, बेनजी आर ग्रेनुलेटेड। बेनजी means basophil, acidophil and neutrophil are granulated and agranulated are of two type, that is monocyte and lymphocytes. Monocyte and lymphocytes. Monocytes and lymphocytes are agranulated। मैं इसको फार्मूला से याद कर लेता हूँ, MLA। Monocyte and lymphocytes are agranulated. Monocytes and lymphocytes are agranulated, MLA. Basophil, acidophil and neutrophil are granulated, BNG. Basophil, acidophil and neutrophils are granulated, BNG. Monocyte and lymphocytes are agranulated, MLA. तो मैं यहाँ पर मैंने बात किया सभी सेल्स जनरली सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ सेल्स ओवल होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स। सम सेल्स आर बाइलोब्ड, फॉर एग्जांपल एसिडोफिलिक सेल्स। ट्राइलोब्ड सच एज एसिडोफिलिक सेल्स, ट्राइलोब्ड सच एज बेसोफिलिक सेल्स एंड मल्टीलोब्ड सच एज several lobes such as neutrophilic cells. We have discussed about the various shapes of nucleus के various shape के बारे में बात किया हूँ। Now we will discuss about the structure of nucleus. Structure of nucleus. Structure of nucleus or karyon. Now first of all we are drawing a structure of a nucleus. Nucleus is bimembranous structure. Nucleus consists of two membranes. Nucleus consists of how many membranes? It consists of two membranes. Nucleus are bimembranous structure. This is the outer membrane, and this is the inner membrane. And this structure is known as nuclear pore.
and nucleus consists of certain fluid, and this fluid is known as nucleoplasm. Nucleoplasm. We will discuss each of them in detail, and in it consists of certain a highly dense structure that is known as nucleolus. A highly dense structure known as nucleolus. This outer membrane and inner membrane is also known as karyotheca. Karyon means nucleus, theca means covering. This outer membrane and inner membrane is known as karyotheca. Is also known as karyotheca. Outer membrane and inner membrane is also known as karyotheca. This nuclear pore, this is the nuclear pore. This is the nuclear pore. At the nuclear pore, a ring-like structure is present. At the nuclear pore, a ring-like structure is present, and this ring-like structure is known as annulus. This ring-like structure is known as annulus. Annulus. Annulus means ring. मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बनाता हूँ. This is the structure of a nucleus, and this is the outer membrane of nucleus. Outer membrane, and this is the inner membrane. This is the outer membrane, and this is the inner membrane. And this is also the inner membrane. And this is the nuclear pore. In this nuclear pore, a ring-like structure is present. And this ring-like structure is known as annulus. इस न्यूक्लियर पोर के बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा. दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज एनुलस. ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं, दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज एनुलस. एनुलस मीन्स रिंग. दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज एनुलस. एनुलस मीन्स रिंग. दिस एनुलस कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट ओपनिंग्स. This annulus consists of small pipes, small tube, which consist of a cavity inside. Small tube है जिसके अंदर खोखला स्थान है, जिसके अंदर जगह है, उस cavity pipe. This annulus consists of eight pipes or sipes. 8 जो ये annulus है, मैं फिर से बता देता हूँ. न्यूक्लियर पोर के बीच में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा. ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एनुलस. ईच एनुलस कंसिस्ट ऑफ 8. प्रत्येक एनुलस में 8 पाइप पाया जाएगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा. ईच एनुलस कंसिस्ट ऑफ 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ईच एनुलस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एनुलस? ईच एनुलस कंसिस्ट ऑफ 8 ट्यूबुलर structure. Each annulus consists of 8 tubular structure. This tubular structure consists of a cavity inside. ऐसा नहीं tubular structure है, अंदर कुछ cavity है. This annular structure consists of cavity inside, cavity और lumen. Cavity या इसी cavity को मैं lumen भी बोलता हूँ. Cavity ईच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए कैविटी और ल्यूमन. मैं इस फिगर में 1 2 3 4 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिया हूँ, लेकिन ये एक के ऊपर एक पाया जाएगा. इधर आगे पाया गया, ये पीछे भी पाया जाएगा. तो मैं सभी स्ट्रक्चर को 4 इधर पाया जा रहा है, इस तरीके से 4 और पीछे पाया जाएगा. तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के 8 होते हैं. मैं सभी को
यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर 4 दिखाया हूँ, 4 इसके पीछे भी होते हैं। जस्ट दिस फिगर इज जस्ट टू रिप्रेजेंट इट। तो अब मैं इसके बारे में बताया कि ये जो है न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर के अंदर 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ल्यूमेन, अंदर खोखला स्थान पाया जाएगा, कैविटी पाया जाएगा जिसको मैं ल्यूमेन बोलता हूँ। दिस ल्यूमेन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ल्यूमेन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं यहाँ पर बताया कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर पाया जाता है। इसके अंदर ये पाया जाएगा एनुलस के बीच में यहाँ न्यूक्लियर, यहाँ पर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पाया जाता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो कैविटी है इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। दिस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर कैविटी क्या चीज़ कंसिस्ट करता है? कैविटी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। एक कैविटी भी, दिस कैविटी टू कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ न्यूक्लियस यहाँ तो पाया ही जाता है, अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इस कैविटी के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उस कैविटी के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। पूरा स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एनुलस के बारे में बात करूँ तो एनुलस मेजर्स अबाउट 800 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। 800 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। जबकि मैं अगर सिर्फ पोर के बारे में बात करूँ, दिस ओनली पोर्स, इफ वी टॉक ओनली अबाउट दिस पोर्स, देन दिस पोर्स मेजर्स अबाउट 500 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। 500 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 800 एंगस्ट्रॉम मेजर करता है। और जब मैं सिर्फ जो है पोर्स के बारे में बात करता हूँ, देन दिस पोर्स मेजर ओनली अबाउट 500 एंगस्ट्रॉम। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 800 एंगस्ट्रॉम होता है। जबकि सिर्फ पोर के बारे में अगर इतने ही के बारे में यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करेंगे तो ये 500 एंगस्ट्रॉम, ये 8 यहाँ से यहाँ तक का 800 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से यहाँ तक का 500 एंगस्ट्रॉम। दिस मेजर्स 500 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। At the outer surface of the nuclear membrane, numerous ribosomes are present. आउटर सरफेस पे ढेर सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आउटर सरफेस, न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे, एट द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूमरस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स। While at the inner surface it is a protein rich region. ये इनर सरफेस यहाँ पर, दिस इनर सरफेस इट इज़ ए प्रोटीन रिच रीजन। इट इज़ ए प्रोटीन रिच रीजन। यहाँ पर भी दिस आर द प्रोटीन रिच रीजन। प्रोटीन इनर सरफेस इज प्रोटीन रिच, ढेर सारी प्रोटीन पाएगी। नॉन एज फाइब्रस प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। फाइबर्स के फॉर्म में प्रोटीन पाएगा। फाइब्रस प्रोटीन आर प्रेजेंट एट द इनर सरफेस। फाइब्रस प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन पाई जाएगी अंदर की सरफेस पे। बाहर वाले सरफेस पे क्या पाया जाएगा? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस राइबोसोम्स। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस राइबोसोम्स। बाहर वाले सरफेस पे न्यूमरस राइबोसोम्स पाए जाएंगे और अंदर वाले सरफेस पे फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम सभी लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब्यूल्स ऑफ द एनुलस। एनुलस के बीच में जो 8 ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, उस ट्यूब्यूल के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। Now we will discuss about the nucleoplasm. 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 Nucleoplasm consists of numerous enzymes. It consists of numerous enzymes or several enzymes. Such as
डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना पड़ेगा, आगे बताएंगे हम। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, nucleoplasm. This nucleoplasm consists of several enzymes. These enzymes are namely DNA polymerase, RNA polymerase, DNA polymerase, RNA polymerase, nuclease, helicase, topoisomerase, ETC। ये सारे न्यूक्लियस कंसिस्ट करते हैं, और इन सभी न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर दिस कंसिस्ट ऑफ Mg++ आयन, मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीस आयन। तो दिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म दिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम्स सच एज डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज। इन सभी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए दो आयन्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर, दैट इज द मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीस आयन, मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीस आयन। बिसाइड्स दिस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि mRNA, rRNA एंड tRNA। ये तीनों ही प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तीनों ही प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ mRNA, rRNA एंड tRNA। तीनों आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के आरएनए कहाँ पर पाए जाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम सच एज डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, ईटीसी। और इन सभी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर दो आयन भी पाए जाते हैं, नेमली मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीस आयन। दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ RNA. These RNA are of 3 types. All the 3 mRNA, rRNA and tRNA. RNA 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA and tRNA। तीनों प्रकार के RNA इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द pH ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। Alkaline in nature. Nucleoplasm is slightly alkaline in nature. Its pH ranges from 2.2 to 2.4, 2.6, sorry, 7.2 to 7.6। न्यूक्लियोप्लाज्म स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। इसका pH कितना होता है? फ्रॉम 7.2 टू 7.6 होता है pH। इसका pH 7.2 टू 7.6 होता है। Now we will discuss about the last structure of nucleus, that is the nucleolus. Nucleolus was first of all discovered by Fontana. Discovered by Nucleolus discovered by Fontana, Fontana, Fontana. The name nucleolus was given by Bowman. Named by Bowman. The name nucleolus was given by Bowman. Nucleolus generally do not consist of membrane. nucleolus generally कोई भी मेम्ब्रेन का बना हुआ नहीं हुआ होता है। Nucleolus is generally do not made up of any membrane, but it is surrounded by
क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन ये कुछ क्रोमेटिन फाइबर के द्वारा सराउंड हो जाता है, बट इट इज सराउंडेड बाय सर्टेन क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। दीज फाइबर्स आर नोन एज न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर, ये कुछ क्रोमेटिन फाइबर सराउंड कर देते हैं इसको, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर। इट डू नॉट हैव इट्स ओन मेम्ब्रेन, कोई इसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ क्रोमेटिन फाइबर इसको चारों तरफ सराउंड कर देते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। तो न्यूक्लियस का खुद का अपना न्यूक्लियस डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेम्ब्रेन ऑफ इट्स ओन, ना खुद का कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ क्रोमेटिन फाइबर आ जाते हैं चारों तरफ से और उसको एक कवरिंग, एक गोल सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर। एंड दीज कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड इनसाइड एंड दिस फ्लूइड इज नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर ही फ्लूइड पाया जाता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब मैं इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया गया। इसके अंदर कुछ अपने आप का कोई फाइबर, इसके अंदर अपने आप का कोई प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है, और वो जो है न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर इसको चारों तरफ से बाउंड्री प्रोवाइड। The place where nucleolar chromatin fiber is not present is known as nucleolar pore. This is known as nucleolar pore. These pores are known as nucleolar pore. न्यूक्लियोलर पोर है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। यहाँ पर दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस। यहाँ पर न्यूक्लियोलस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा, दिस कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ग्रेनुलेटेड सब्सटेंसेस। इसके अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा वो कुछ ग्रेनुलेटेड सब्सटेंस कंसिस्ट करता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरा है। सेवरल एंजाइम्स आर देयर, RNA, tRNA, mRNA सभी पाया जाएगा। एक्टिवेट करने के लिए Mg++ आयन और Mn++ आयन पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर दूसरी चीज़ें हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, several granules, and these known as pars amorpha. These granules are known as pars amorpha. ऐसे granules को मैं pars, PARS, pars amorpha, amorpha, AMORPHA. These granules are known as pars amorpha. ऐसे granules को मैं pars amorpha बोलता हूँ। These nucleolus का काम है, the function of nucleolus is to synthesize rRNA. फंक्शन क्या है? सिंथेसिस। फंक्शन इज द synthesis of rRNA, synthesis of RNA and storage of RNA, and storage of rRNA। तो इसका फंक्शन 2 है, दैट इज़ द स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ rRNA। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार फिर से समअप करना चाहता हूँ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको रिपोर्ट किया था। ये जनरली एक नंबर में होता है, अगर न्यूक्लियस 2 पाया जाए तो किसमें, पैरामीशियम में न्यूक्लियस 2 पाया जाता है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटे न्यूक्लियस को मैं बोलता हूँ माइक्रो न्यूक्लियस, बड़े वाले न्यूक्लियस को मैं बोलता हूँ मेगा न्यूक्लियस। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस सेवरल होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स में होते हैं। स्केलेटल मसल्स में सेवरल इन नंबर होते हैं।
ओपेलाइना में भी सेवरल इन नंबर न्यूक्लियस होते हैं। अगर प्लांट सेल में न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, सेवरल न्यूमरस होते हैं, तो उनको सिंसियल सेल्स बोलते हैं। अगर एनिमल सेल में न्यूक्लियस का नंबर ज़्यादा है, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, देन सच सेल्स आर नॉन एज सिंसियल सेल्स। तो वहाँ सिनोसाइट सेल बोलते हैं, सिनोसिटिक सेल बोलते हैं, और सिंसियल सेल एनिमल में बोलते हैं। न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी एंड साइड ट्यूब और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट इन सभी में होते हैं। सच सेल्स विदाउट न्यूक्लियस आर नॉन एज इन्यूक्लिएटेड। पोजीशन के बारे में मैंने बात किया। पोजीशन न्यूक्लियस सेंटर में पाए जाते हैं in an animal cell because no vacuoles are present. Because of the presence of vacuole, nucleus are eccentric outside the center in the plant cell. शेप के बारे में बात कर रहा था। शेप न्यूक्लियस के बाहर वाला न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेनस के बने हुए होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। बोथ द मेम्ब्रेन्स आर नोन एज कार्योथीका। दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ में कार्योथीका बोलता हूँ। आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन से लगा हुआ रहेगा प्रोटीन रिच फाइब्रस प्रोटीन पाया जाएगा इनर रीजन पर, उससे अटैच होगा। दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में एक गैप पाया जाएगा जिसको मैं न्यूक्लियर पोर बोलता हूँ। न्यूक्लियर पोर होता है, ये न्यूक्लियर पोर कंसिस्ट ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज एनुलस। दिस एनुलस कंसिस्ट ऑफ 8 पाइप लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए कैविटी इनसाइड और ल्यूमन इनसाइड। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बीच में कैविटी या ल्यूमन पाया जाएगा एंड दिस इज फिल्ड अप विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियो एनुलस इज 800 एंगस्ट्रॉम एंड द डायमीटर ऑफ द पोर measures about 5 all the 8 pores measures about 500 एंगस्ट्रॉम। मैं इसके बाद मैं बात किया न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम्स सच एज द RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, न्यूक्लियेज, हेलिकेज ETC। ये तो कई सारे इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ rRNA, tRNA एंड mRNA। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ RNA भी कंसिस्ट करते हैं ये। These consist of Mg++ ion and Mn++ ion for so as to activate the enzymes। सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ये सभी आयन भी पाए जाते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म का pH 7.2 to 7.6 होता है। Now we have discussed about the nucleolus, and nucleolus was first of all discovered by Fontana and the name nucleolus was given by Bowman। न्यूक्लियोलस का कोई भी खुद का अपना मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये जो है सराउंड होता है बाय द न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर। कुछ क्रोमेटिन फाइबर होते हैं चारों तरफ से आकर के उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर इसको एक शेप देने का काम करता है। इसके अंदर कुछ ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जिसको मैं बोलता हूँ पार्ट्स एमॉर्फा। These nucleolus is responsible for the synthesis and storage of RNA. Okay, thank you. Now this is all about the nucleus, nucleoplasm and nucleolus. Okay, thank you and goodbye.